गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द डेली क्रिप्टो शो। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हाउ अ ट्रेडर लॉस्ट ऑल हिज क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल अप्रैल फूल्स जोक। यस, दैट्स राइट माय फ्रेंड्स, शिट हैपेंस। एंड ऑफ कोर्स we'll also talk about how Reddit has now started integrating Ethereum NFTs on its platform, and the top news today is going to be who is the real Satoshi Nakamoto. So a lot of new exciting news coming up to your way. If you're coming to this channel for the first time, then do share and like this video. And of course, do not forget to subscribe to this channel. So let's begin today's episode with a slow clap. So let's begin with the first news item today. Elon Musk, in another attempt to promote his famous and his favorite cryptocurrency, the Dogecoin, he shares a video on a Twitter thread which is titled as "This explains everything." So this was actually a response to one of the tweets by Brett Winton, who is actually the director of research at Ark Capital. उन्होंने actually एक joke post किया था that how it's very difficult to have a conversation with somebody and explain them how what mining is and about this whole blockchain technology. So इसी opportunity का फायदा उठाते हुए Elon Musk ने भी अपना एक नीचे वीडियो डाल दी telling them everything about this explains everything about Bitcoin, everything about mining and the whole world of cryptocurrencies. And of course इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट इमेज था that was about a Dogecoin, the Shiba Inu dog. तो इसके बाद actually Dogecoin में थोड़ा सा पंप भी आया about 7-8%, which is pretty normal for Dogecoin. And I think Elon Musk इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं अपने एक ट्वीट से कि यार कम से कम 8-10% का तो Dogecoin में पंप तो आना ही चाहिए. And the famous Bitcoin hater, yes, there are quite a few, more than that you would like to imagine. His name is Peter Schiff. He's the chairman at Schiff Gold, which is an investment company. And उन्होंने ये ट्वीट किया 1 अप्रैल को that he is the real Satoshi Nakamoto. उन्होंने कहा तभी वो बिटकॉइन के बारे में इतना ट्वीट करते रहते हैं, इतना अग्रेसिवली इसको बोलते हैं कि that it is a bubble and it is gonna burst any day and investors will lose this money, ताकि जो वीक हैंड्स हैं वो अपना बिटकॉइन बेचते रहें एंड ही लुक्स एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर बिटकॉइन. बट थोड़ी ही देर बाद उन्होंने इस ट्वीट का एक में एक और ट्वीट किया कि दैट इट वाज एन अप्रैल फूल्स जोक. ही डजंट वांट पीपल टू एक्चुअली गो एंड स्टार्ट बाइंग मोर बिटकॉइन. बाइनेंस के सीईओ ने एक इंटरव्यू के टाइम बोला कि दैट ही इज शॉक्ड बाय दिस एनएफटी क्रेज. आई मीन ही स्टिल कैन नॉट फैथम दैट एनएफटी बाय पीपल वाज सोल्ड फॉर $69 million. I mean, he said that I'm not an art collector, I don't understand it, but this is crazy. I mean, putting a value of $69 million or something as that, that is insane. And that is like, he cannot ever imagine that it's going to actually have that much value in future. He feels that NFTs are a bubble which can probably burst anytime soon. So, but he's just happy that, this ecosystem is developing and, people are more people are adopting this whole blockchain technology and becoming a part of the whole crypto ecosystem. So he's happy about that, but he's just not, he's just a little surprised by the way this industry has picked up, and especially the massive adoption of NFTs in the recent times, and it's skyrocketing prices that, people are buying it at. So it's actually a mixed feeling. I think it's not there and or here. So I have nothing more to make of it. So let's move forward to the next story. And Terra Luna Network, which is one of the famous DeFi networks, उनके जो founder हैं Duke Kwon, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि besides Satoshi, we want to be the largest holder of bitcoins. I mean, Satoshi Nakamoto, he still holds 1 million bitcoins, and उनके बाद I think अब Terra Luna चाहती है कि वो becoming the second number, and ये काफी aggressively bitcoin को accumulate कर रहे हैं. I think as of this year, starting of January until now, they have accumulated $1.3 billion worth of Bitcoin. And उन्होंने बोला ये अभी शुरुआत है, अभी तो हम और accumulate करते रहेंगे. And the reason that they're doing it is because इनकी जो अपनी stable coin है, the Terra Luna, which is pegged against the US dollar, वो चाहते हैं कि ये Bitcoin को उसका reserve currency बना दे. तो जो Terra Luna होगा, it will be backed by Bitcoin. So आप सोच सकते हैं कि इसका इस टेरा लूना करेंसी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स इस न्यूज़ के बाद जो टेरा लूना था, इसका प्राइस काफी पिक हुआ एंड इट हैज ऑलरेडी रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ दिस ईयर, नॉट ऑफ दिस ईयर, आई थिंक ऑफ इट्स लाइफ टाइम. It's trading roughly around $100 to $110 at the moment. And another thing which people want to know, other than who is the real Satoshi Nakamoto, it is often that how much money these creators of famous meme currencies make when they pull off a marketing stunt such as that. तो Dogecoin के जो फाउंडर हैं बिली मार्कस, उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट डाला कि यार अब बस हो गया, ये ट्रोल्स मुझे परेशान करते रहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा पैसा कमाया. Dogecoin is worth $80 billion today,
and you are making so much money off us and about all this and this is such a scam. तो उन्होंने बताया कि यार देखो भाई, मैंने खाली $3,000 कमाए हैं डोजकॉइन से, मतलब ये ऑनलाइन हरासमेंट बंद करो. And he took a dig at all these other cryptocurrencies also. I mean, he was like, यार देखो, जो हमारे बाद आए हैं डोजकॉइन के बाद, जो क्रिएटर्स हमारे बाद आए हैं, उन्होंने तो बहुत ज्यादा पैसा लोगों का मारा है. And I just made 3,000 directly from Dogecoin, which is not a very big sum of money considering the amount of work that I put in creating something like that. And उन्होंने एक चीज और भी बोली कि देखो, ये Dogecoin का जो सक्सेस है वो इसलिए भी है क्योंकि जो हम फाउंडर्स थे, we were not greedy, we were working on the project, we were working on making it successful and rather than accumulating the wealth and running away with investors money, जो कि आज की क्रिप्टो करेंसीज में हम देखने में सामने आता है, स्पेशली these meme currencies. क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट आता है, मार्केटिंग कैंपेन पे पैसा खर्च करता है एंड पहले 2 दिन में जितना पैसा कमाता है उसको लेके लंदन, नॉट लाइक नीरव मोदी, बट यू गेट द आइडिया व्हाट आई मीन. भागने से मुझे एक और फेमस न्यूज आई. टर्की का एक फेमस क्रिप्टो एक्सचेंज था जिसका नाम था थोडेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, एंड इसके जो फाउंडर्स थे उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि दैट दे हैव रन अवे विद इन्वेस्टर्स मनी टू द ट्यून ऑफ $108 मिलियन. इस केस के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इस फाउंडर के ऊपर 40,000 साल का प्रिजन टर्म लगाया है. आई मीन ये कैसे पॉसिबल है? ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रॉड, इनके ऊपर बहुत सारे अलग चार्जेस भी लगे हुए हैं और ये 2 साल से भागे हुए हैं, लोगों का पैसा लिए हुए. पिछले साल अप्रैल में इस एक्सचेंज ने बोला कि यार अभी थोड़े टाइम के लिए हमारे को मेंटेनेंस का काम करना है, तो ये अकाउंट्स आपके थोड़े टाइम के लिए हम फ्रीज कर रहे हैं, अभी यू विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ. ये मतलब रेगुलर मेंटेनेंस वर्क जो होता है वेबसाइट्स पे, एक्सचेंजेस पे, वो हो रहा था. एंड वो कभी बंद ही नहीं हुआ वो आज तक चल रहा है. बिकॉज इसके 2 महीने बाद ये जो इसके फाउंडर थे वो अल्बानिया चले गए, सब पैसा ले गए लोगों का, विच इज ऑफ कोर्स $108 मिलियन. एंड वो बेचारे इन्वेस्टर्स या सम हैड लाइक सो मच मनी इन्वेस्टेड, अबाउट लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड वो आज तक वेट कर रहे हैं कि भाई ये मेंटेनेंस वर्क कब खत्म होएगा एंड व्हेन विल बी एबल टू विड्रॉ. एंड IMF की चीफ गीता गोपीनाथ ने बताया कि देखो, इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रिप्टो एसेट्स का जो अडॉप्शन है वो थोड़ा अब एक्सेसिव स्केल पे होने लगा है, लोग इसमें ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, पीपल हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग. एंड इसकी वजह से जो हम बड़े बड़े नेशंस हैं, जो हम सबको बताते हैं कि आपको अपना काम कैसे करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना है कि वी नीड टू कम आउट विद एन इंटरनेशनल रेगुलेशन. there is a lot of gap right now in the whole industry, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि these crypto millennials, they don't chuck us out of our own jobs and they take over the world, take over the financial world. तो I mean jokes aside, but that's what she said. एंड आज की सबसे एक्साइटिंग न्यूज, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक क्रिप्टो ट्रेडर के साथ एक बड़ा बुरा अप्रैल फूल्स जोक हुआ, एंड उसके बारे में हम आपको बताते हैं. एक्चुअली एक कंपनी है कावा नेटवर्क, उन्होंने ये ट्वीट किया, इट्स अ ब्लॉकचेन कंपनी. उन्होंने ट्वीट किया कि हाउ दे हैव पार्टनर्ड अप विद टेस्ला एंड टेस्ला इज गोना अडॉप्ट देयर टेक्नोलॉजी इन ऑल द फ्यूचर टेस्ला मॉडल्स. एंड इस ट्वीट को पढ़ते हुए एक आदमी इतना एक्साइटेड हो गया, उसने कहा कि भाई मेरे पास जो भी पैसा है ना, अब मैं इस कंपनी में लगा दूंगा, बिकॉज इस न्यूज के बाद तो ये कंपनी एकदम से ऊपर भागने लग जाएगी. एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही डिड. उसके पास $8,000 थे एंड उसने उसको 40 लॉन्ग में फ्यूचर्स में उसको लगा दिया 40x पे. एंड थोड़े टाइम के लिए ये एक्चुअली पंप हुआ $4.53 से. ये कॉइन एक्चुअली इट वेंट अप टू लिटिल बिट लाइक $5, एंड उसने कहा अभी और ऊपर जाएगा. बट इतनी देर में इस कंपनी ने आके बोला कि गाइज ये एक जोक था, आई मीन डोंट टेक इट सीरियसली. एंड वो 4.53 से आकर सीधा 4.23 से आया एंड वो बंदा बेचारा लिक्विडेट हो गया, सारे पैसे उसके चले गए. एंड इसी सीख से उसने बोला कि गाइस व्हेनेवर यू सी एनी न्यूज स्टोरी, तो पहले ये चेक कर लो कि यार मतलब ये जोक है या जोक है. एंड आज की आखिरी NFT रिलेटेड न्यूज, Reddit which is one of the largest social media giants, उन्होंने अब इथेरियम NFTs को अपने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिया है. ये आप देख सकते हैं 4 टाइप ऑफ NFTs जो करंटली वो बेच रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर गेटिंग सोल्ड फॉर $400,000. मतलब लोग खरीद रहे हैं. एंड आई थिंक ये अभी एक उनका टेस्ट रन है, दे ट्राइंग टू सी हाउ दे विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दिस टेक्नोलॉजी ऑन देयर प्लेटफॉर्म. एंड आने वाले टाइम में वी कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू मिंट योर ओन NFTs एंड सेल योर ओन NFTs on the platform. So a good future there. So that's all for this episode. If you like today's video, do leave a like, do comment, and of course subscribe to this channel. And if you ever want to reach out to me, do follow me on Instagram. My handle will be in the description. And that's all for today. I'll see you in the next video.